So by using that data science part, yeah, so within that data science part, all what we can do, we can download the Jupyter environment, and let us try to use that Jupyter environment and try to run again all the codes, your basic Python codes. And we already have the environment from W3 school. So already you have gone through with that in 228L and 229 as well. So today, then in that case, we will start with the further sessions of regression. So today's part is like, then we'll go and continue with the topic called what is regression, and we'll take some mathematical representation, what is the purpose of regression, and even we'll try to discuss in case if we can get some details about more in depth, purpose, why, how, and along with your Python codes. And we'll try to do and run those Python codes in your Jupyter image. So that would be really means if you are not interested in containerization, hardly matters. If you already did the VM part, so in your virtual image, wherever you have the virtual image, either in Linux or Windows, hardly matters. You can even deploy the same Dockers within the virtual image as well. So you all another container sort of, right? So it's an embedded container in the virtual machines in case even you want to go and get into it. So even you can try like this, but in that case, you must check what is your system resources. Okay, if you have more processors and more RAM, you can create your own containers. But in case if you don't have a RAM like 16 GB or processors like at least 10 core, 12 cores or something like. So if you don't have that, because if you have a new computer, I believe you must having it. But if it is not, in such cases, no problem. We can deploy the containers, like especially we have to go through with a concept called Dockers. Okay, now what is Docker and how it works? We can deploy on the core machines as well. It is just similar like virtual machines, right? So if you really want to go for it, today we are supposed to work, and let me create a quick platform for all of you, and I'll share how you can download the Dockers, and based on Dockers, we'll deploy then any image, any server image, whatever is required, we can able to configure it. All right. So this is the today's scenario where we are supposed to work, and this is how we are going to start it. Right. So everybody's ready. So please keep your computers on, and I'll guide you step by step so that you can also do the practice at the similar way. So I hope my screen is visible now. Yes, sir, we see it. Perfect. So in today's session, just take a look. We are supposed to start with a Docker. So I hope you all are on your Windows environment, right? Yes, sir. Perfect. So if you all are on Windows, then do you know the best practice is on Windows, your Docker is again available for GUI mode. You have an application like on Docker sort of, right? So all what you need to do for containerization. Now, what is the difference in virtual machines and containerization? Virtual machine means the correct word for virtualization is hypervisors. So there is a question in your exams, means mostly you will find this very common question, that what is the difference between hypervisor type 1 and type 2? This is one of the common question. Second question, what is the difference between hypervisors and containerization?
So today we are starting with the concepts called containerization. And what is containerization all about? Containerization is a concept where we don't have the guest operating system, right? So that means you have a base operating system with you, and on the base operating system you deploy many applications, suppose. But now we have a very specific requirement of the application. And the best practice, do you know, like in there is a drawback also for the VMs. In virtual machines, the problem is you need the host operating system as well as you need the guest operating systems. So as I have shown you in my previous session, quickly I'll show you again. You can see as I have also the VMs, the virtual machine, my base operating system is Sedulity operating system, which is nothing but like a Linux. You can consider it as Linux, right? So this is my official operating system, and we are the India's first company. We developed this operating system for India, and we filed the patent in 2011. Right. So this is the Indian operating system, first patented, processed Indian operating system called Sedulity operating system. But today you have like Ubuntu and many other operating systems. So you can consider it like Linux, because today this is also based on Debian kernel, like many other operating systems are on Debian kernel, if you are quite familiar with the Linux. So my kernel is nowadays on Debian, but we are specifically working on the kernel level security. So our major job is in a different perspective, to design the operating system for forensics users, or for cyber security purpose and all, and even for some developers. So we have a various flavored operating systems, and for a specific task, and on generally with B2B, and up to some range of along with some students. So we shared these operating systems. This is how we people are working. But for you all, you can simply go and download, which is free of cost. You can go and download Ubuntu. All right. So in the previous session, we already discussed about what is Ubuntu. You must take Ubuntu 24.04 LTS desktop version. Okay, so you can work on it. So the concern is here, if you will go and check, I have a base operating system like Linux Sedulity OS, and in virtual machines I have many OS, many different OS like Windows 7, Windows 11, and I have multiple versions of our operating system. Even I have Ubuntu, because I'm into the research, so I need all these different platforms where we have to work across. We have Forensics Edition, our 10th version. We have a malware analysis specific Windows for that. So as per the job and as per the different criteria, we have different OS. Okay, but now what happened? What is the limitation? I need more memory, right, on the hard drive, to keep all these VMs. Reason, I have my base operating system, and along with that, I need to deploy the guest operating system. So these all are the guest operating systems. So I need to deploy the guest operating system. Afterwards, I need whatever the application I need. I need to deploy those applications within this OS. Okay, so even I want a MS Office, Microsoft Office, which is directly not possible. But yes, we have another concepts of again containerization called the concepts of Wine. Wine doesn't mean that it's again the spelling is same. The concern is WINE. So Wine is one of the application where you can run Windows applications on Linux platform. So there are certain criterias are there, and this is not new. This is a very, I would say, ancient process where we used to run many Windows application directly on Linux. So what is that? That was a very old concept of containerization, which we preferred and we use generally on Linux. But today, officially, we have a great platforms, great concepts where you can run many servers without, deploying and on a particular platform, or you need not to go and get into a guest operating system. Specifically, I'm talking about like specific development interfaces you want. Suppose you want multiple versions. Let's say if anybody is working on web development, and now suppose
You have some old websites which were working on PHP 5 versions or so, and today you also have to develop on PHP 8. Few websites are working on, let's say, PHP 6 or 7 version. So now concern is you have 3 different stages of PHP. How could you deploy 6 different versions on one platform? And which one is active? Even you deploy, but then which one is active? Because at that particular instance you can only run one PHP at one go, okay, in one particular part. So your operating system will by default take a one particular PHP. We have to define it, we have to mention it. But in that case, even you have some Java programs, or sometimes, you know, JRE you need to deploy and all, many Java programs are there. So even you are working on those platforms, in that scenario, the purpose is we need to deploy the various different issues. Like I need Java, I have many old programs where we luckily I worked with Java also. So Sun System, Sun Microsystem, I was there once. That that version 1.0, 1.1, 1.2 was there. So that was called Hot Coffee Cup Java. So that was a time where we were supposed to work for Sun Microsystem, and many projects being handled for them, right? And I remember now, if even there are many applications which are working with Java 2, Java 1.2, but today you have various different versions of Java, as you know, right? So now I want the previous version, some middle end application versions or latest versions, and I want to test my application on various different versions along with the types of problem which we are going to face. So for your client side, you need to give the versatility, and you need to give the augmentation of the application on a different platforms. Hardly matter whether it is a the old platform and the new platform. So in that case, how you will do this, how you will work? आप क्या कहोगे? नहीं जी, नए कंप्यूटर के लिए तो नया कंप्यूटर खरीदें, और पुराने कंप्यूटर के लिए जाइए, पहले पुराना कंप्यूटर लेके आइए, उसमें विंडोज 7 या पुराना वो आर्किटेक्चर क्रिएट कीजिए, है ना, या विंडोज एक्सपी डालिए या विंडोज 7 डालिए, और फिर ढूंढो कहीं जावा आपका पुराना एसडीके पड़ा है 1.1, 1.2, एंड देन यू कैन स्टार्ट. Although it is not difficult to download, but the concern is where to download. Are you really want 1.2 and at the same time the latest version of Java? Both can't work on the same platform in one go. Understood what is my concern? Same with Microsoft, your .NET platforms, your frameworks. So if you have a many versions, many applications I have seen which were working on the previous .NET frameworks or middle end .NET frameworks or latest .NET frameworks, है ना? तो even last time some of the students were saying कि सर हम virtual box डाल रहे हैं और वो कुछ error कह रहा है, वो कह रहा है C++ डालो and do this and do that, right? So what does it mean? That means their machines were generally, I believe, on home edition, and home edition won't support the server platforms or sharing platforms, and just because of it, that operating system is not supporting to you, right? तो आप देखिए ऐसा प्रॉब्लम्स बहुत बार मिलेगा. In such scenario, what is the best practice? The best practice is always and always go with containerization. So you can have the different flavors of containers. Now what is containers and all that जो हम बात कर रहे हैं, containerizations में first of all there is no guest edition, no guest operating system is there. All right, मतलब now can we avoid these OS which we deployed? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको भी पता है, अभी हम विंडोज वीएम में डाला होगा जिन्होंने, वो कहेंगे सर 15 से 20 जीबी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही खा गया मेरी, है ना? यू मस्ट हैव सीन that by default it consume almost 25 20 to 25 26 GB if you just deployed Windows 11 along with some basic softwares. So if we'll go and take a look, see, you can take a look in my machine. I deployed Windows 7 and today my Windows 7 is almost 37.6 GB. My Windows 11 is 47.6 GB. And
The last which I used, that was my malware, is 75.2 GB. Everything is in this VDI. I have a backup file the day I installed this VDI for malware analysis, because frequently I need to make changes and to identify the behavior of the untraced malwares. So we are working on those kind of projects, right? So my default size where I deployed the basic softwares, which is almost 26 GB. And almost you can see 50 GB is being added in present VDI. So all what I need to do, I'll just simply select this, shift del, I'll remove and I vacate my 75 GB in one go. And I again make a one duplicate copy of this same VDI. I have to keep the same name. Always remember the name must be same, right? I need to keep this same name. And again, I will get a fresh formatted Windows without any malware, without any hassles, without any issues, right? I can pursue my again the same fresh formatted computer there and then. And also I reduce my 50 GB on this regard. Understood? So how we people are working and what is the criteria. But for that, another problem is every time I need to consume 20 GB because the Windows will occupy 20 GB. Now the concern is, can I avoid these 20 GB? Let my 6 GB data is there. So I would create a 6 GB data instead of 26 GB data. Can I reduce even this 20 GB? It means we are planning to think about, can we ignore the guest operating system? Already I have a host operating system. Hardly matters you have Windows or Linux or Apple Mac OS, that hardly matters. Even for Mac OS people, I always recommend start using containerization, right? So what is the process of containerization? Let us start and think about what is containerization. So main differences in case of hypervisors, you always have the guest and host OS. And again, which hypervisor? Hypervisor type 2, right? It is a hypervisor type 2. Sir, from where we can download this Schedulity ISO? Yeah, Kamalji, just about to start with that. I think now the concept is clear, na? Right? So what Yes. is the purpose of containerization? Now let us quickly go and start with the containerization. For all of you, I prefer you use one of the concept of Dockers. What is it? It's a concept of Docker. Now what is Docker? So first you need to learn, install or download Docker for Windows. All right, you people are on Windows, so you have to write like this. For Mac OS, please mention it on, and Mac OS users, please mention even your M1, M2, M3, M4 processors. Okay, so you are basically on ARM processor. So you want Mac on ARM processor, the Docker for Mac OS for ARM processor. Okay, for Windows user, you can simply go and write download Docker for Windows, and for Linux users, download Docker for Ubuntu. If you are using Ubuntu, or you have a different architecture like a Red Hat architecture if you are on servers. Okay, so for servers also we sometimes deploy the multiple platforms. तो ये Docker एक ऐसा concept है हर जगह चलता है, right? So even to utilize your base server with multiple VMs, right, or multiple containers, so we can try with the concepts of Docker on servers as well. All right, so you can see many different links are available. For more details, for more information, their official website is docker.com. Okay, the official website is docker.com. All right, this is docker.com is the official website. There you can find the documents. For more details, for any help, they have the documents. So first, let us try to run and open this platform, right? So first, try to run this platform.
So there you will find the links. I hope you identified. You have an ARM processor. Please don't use it. You have to use this x86-64 x86-64 platform, Docker desktop. So you need a desktop, right? You will get a graphical application. Even you can see more than 10 million the USDs in the annual revenue being generated. So commercially people are using it for the large enterprises. Okay, so even you can identify how this Docker works. For more details, the details has already been mentioned and along with the theory. Okay, so what is the best practice? You need to go and identify where is your Docker. There you have a link. So select the first one, Docker desktop for Microsoft Windows 86-64 category. Download this one, and after downloading you will get a icon on your desktops. Okay, and once the icon is there, basically it is the icon for Docker installer, and after installer you will find the path in your program files. There is a Docker folder and there you will find docker.exe. Okay, so you just need to start with this docker.exe, and once the Docker initiated, okay, it's installed or initiated, you can try like this if you want to run by command line. So all the options are there, but just you double click and it installs. All right, so for Windows user it is not difficult task, but you must check how to install and what are the steps and all. And afterwards we'll try and identify various different options. This is start Docker desktop, so not start automatically after installation, right? You need to make certain settings in case if it is required, so you can try what all the settings are there. For more details, just go through step by step of installation. Here you have a Windows installation model, right? Is that clear? Is that clear? And now further they will ask you to create the user IDs and all. So please don't you need not to create even the user IDs. Okay, really you want to contribute to the society, you want to make your own VM and you want to contribute to the society, then only I believe it's better to create an account on it. Otherwise you need not to prepare any account on it. Okay, simply just go and download, process the installation, and after installation, then further for more details, at least you can go and find many different steps. Like on Geek for Geek, there is a very good again another platform which gives you the way how you can install, or they have given you the complete with question answer. See, you can go with the diagrams, how does it works, and what is containerization. So I told you now, there we have only the host operating system, and there we need a Docker, and on Docker we can deploy many applications. So that is what like the concept of containerization. In your exams, you must get a complete detail for theory. You will find the theory over there. So Geek for Geek is really good platform for theory, for all diagrams, for the code, in case if the code is required, what is the Docker specification, how much RAM they required, okay, and storage, how much minimum storage is required, okay, network, do you have some networks, and the processor which is recommended. Accordingly, you please start working. Step by step installations are there. So what is the step, what you need to do, how you can configure, click where to click, how to proceed. So step by step, all the information is being given over there. Now after installation, you need to use Hyper-V or not, so enable Hyper-V option. Okay, afterwards might be you will get your network navigation settings, and also you need to enable certain settings. So there all the settings has already been defined. Please follow all these steps, and you can try till this particular part. I believe this step, don't go and pull this part. Okay, before that we need to process and we need to understand what is this all about. So please everybody
quickly go for the installation steps from Geek for Geek. I think they have given you with their explanation. Wonderful document. Right? Is that clear? So you can try how to deploy your Dockers in one go, and for that, there you will find the Geek for Geek link. I think it's already there. Otherwise, if still you have any problem, you may watch one YouTube video that how to install a Docker on Windows and Linux. So at least you can watch any one of that video and then proceed. All right. I hope the concept is clear. Otherwise, simply you have to follow the Geek for Geek steps for up to, just do it up to, I believe, because they have given you a certain task that you are supposed to go and download your web server and let's say Nginx server. So they are going to make your machine as a web server. Really you want, you may proceed. That's not a problem. But I want, like, really why you are going to deploy the web server if it is not required. If it's required, you may go and proceed with this way. And you can pull. Otherwise, we will going to pull some other images. Okay. So before going to pull any image, let us configure it in the proper way. After configuration, because there you have a desktop part, complete the installation process, open your desktop from the start menu, enable your Hyper-V and Windows subsystem for Linux, WSL model. Okay, features when prompted on your Windows, and then Docker desktop will be automatically restarts after enabling all these features. So this is how the number of steps which you can process. For verification that it's already being committed, you can simply pull hello world. You can write hello world and you can check Docker pull hello world. Or you really want a server, web server, you can go with this. Okay, you can check your version, and I think this is how the basic part is all about. All right. Sir, Any good doubt, any morning, sir. query? I So please. downloaded the Docker one, Good and morning. there is one Okay. message, Docker subscription service agreement. Okay. So did you, Subscription. yeah, You need not to go with subscription. Even you can ignore if possible. okay, Right. वो क्या होता है? Then you can even contribute to the Docker community. That is what I said. okay. Right. So even you can ignore that subscription part, and I think you will get a proper Docker over there. Sir, can I Right. show that one? Please. I'll just stop the sharing. You may please continue and share the Wait, sir. steps. Yeah. Wait, Give me sir. a minute. I have just stopped it right now. Excuse me, sir. Sir, it is taking time to unpacking files. हाँ ठीक है, जो भी आपका रिसोर्सेज होंगे तो यू नीड टू wait for some time because it actually need to correlate with your complete hardware resources, क्योंकि आपका host OS चाहिए सबसे पहले ना. So they'll take your host OS with their admin permissions are required, and then only you can able to synchronize your containerized applications. Right. वो आपके पहले हार्डवेयर से रिसोर्सेज तो लेगा ना. So in that case, most important part, you have to run it with the run as administrator. नहीं भी किया तो वो अपने आप आपसे पूछता है. There must be a pop-up that we have to take a admin permission. तो वो yes no आया होगा. You must be clicked on yes. Right? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Sir, actually इसको VM में करना चाहिए था क्या? Actually मैंने host में ही कर दिया है. कोई बात नहीं, होस्ट में चलेगा ना, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. That's not a problem. ठीक है. VM में आपके उतने रिसोर्सेज होने चाहिए. Then you can even deploy in VM. Otherwise होस्ट में करो, क्या दिक्कत है. जैसे आपने वर्चुअल बॉक्स करा था, बिल्कुल ये बेस प्लेटफॉर्म्स हैं. इसके बाद अंदर जो भी हम बनाएंगे वो VMs हैं, वो मशीन्स होंगी. वो आपको रखनी है नहीं रखनी है, दैट्स अप टू यू. I'll show you ना. देखो मेरे पास, मैंने आपको अपने वर्चुअल बॉक्सेस भी दिखाए. मैंने भी बेस में ही डाला हुआ है. In my base OS, I deployed Docker images, so I can just
show you. Acha, abhi, I think madam is going to share her screen. Afterwards, I'll share you that Yes. everything is in my machine as well. I deployed on the based host OS only. So that's not an issue. उससे बल्कि ज़्यादा आपको सिंक्रोनाइज प्लेटफॉर्म और हाई परफॉर्मेंस मिलेगा. हाँ मैम, you need not to go for any subscription, I believe. So that is perfectly fine. है ना? ये तो जीमेल के अंदर मेल कह रहा है क्या? ये तो मीट का लिंक है. Share that screen where you have installed. You have to share the complete operating system. Then only you can share it. ये आपने जीमेल शेयर कर दिया नम्रता जी. दोबारा पूरा सिस्टम एंटायर मशीन एंटायर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए. पर्टिकुलर विंडो शेयर हुई थी. Good morning, sir. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं दीपिका मैम? ठीक हूँ sir. Sir, I installed Docker and yeah, and after that I checked using command prompt Docker version. So it is also showing 28.0.4. Is it fine? हाँ ठीक है. कौन सा वर्जन कह रहे हो आप? 28.0.4. हाँ परफेक्ट. आई थिंक आजकल यही चल रहा है. तो Okay, sir. परफेक्टली फाइन है ना. हाँ, दैट्स नॉट एन इशू. ग्रेट. Okay. तो बस Yeah, अब okay, आप sir. क्या And करोगे? द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू फाइंड आउट. ऊपर ना आपको इसी में ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशंस में ही ना आपको ऑप्शन मिलेगा उसी आपके सिस्टम में, दैट वी कैन पुल इमेजेस. यू कैन पुल द इमेजेस. आप सर्च करोगे ऊपर ना, जैसे गूगल सर्च जैसा एक ऑप्शन रहता है उसमें yes, ग्राफिकल sir, it's एनवायरनमेंट में. there. हाँ, सो देयर यू हैव टू पुल द इमेज. उसमें एक बार लिखो हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड की पूरी इमेज डाउनलोड हो जाएगी. इन द सेम वे हम लोग जुपिटर की इमेजेस भी ट्राई करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे ख्याल 2 या 3 जीबी ले सकता है, 5-6 जीबी ले सकता है. अलग अलग डिपेंड करता है कौन सी इमेज इज रियली गुड फॉर यू. दैट वी कैन ट्राई. ओके, तो एटलीस्ट फर्स्ट वी नीड टू लर्न हाउ वी कैन गो एंड डाउनलोड एनी इमेज. तो आप एक हेलो वर्ड की इमेज डालोगे, कुछ केबीज की होगी, and the moment you run that image you will get the output called hello world. Okay, sir. जैसे हम Yes, प्रोग्राम्स sir. लिखते I हैं ना, हेलो searched. वर्ड फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, सेम Yes, yes, कॉन्सेप्ट. sir. हाँ, डॉकर में इमेजिंग का और कंटेनराइजेशन का. तो आप इमेज डाउनलोड करोगे हेलो वर्ड की, ठीक है, पुल करोगे हेलो वर्ड इमेज, और उसके बाद कंटेनर्स में जाके देखोगे, वहां पर एक जब आप इसे रन करोगे तो एक नया कंटेनर खुलेगा, उसमें ये इमेज ओपन होगी. अंडरस्टूड? Okay, sir. हाँ, तो ये जो Okay. इमेज है वो एक कंटेनर में ओपन होगी. सो देयर इज अ सेपरेट ऑप्शन फॉर कंटेनराइजेशन. So you just go to containerization and identify the image, select that image, and then virtually that will occupy the RAM and the memory, and then it executes and you will get the message called hello world. अगर hello word आ गया मतलब अब आपका containers आपके मशीन में अच्छे से install हो गया. Probably Yes, one sir. time I Hello world think. is visible. हाँ, हाँ आ गया आपका. right, it is visible now. Yes. Okay, so हाँ. I will download it first. हाँ, ये देख रहे हो ना, ये लिखा है ना डॉकर रन हेलो वर्ड. अच्छा, एक और चीज, इफ यू सिंपली रन कमांड से भी अगर आप सीधा रन करते हो तो क्या होगा, आपकी मशीन में हेलो वर्ड तो है नहीं, सो ऑटोमेटिकली पुल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा. दोनों हो सकते हैं. इफ यू जस्ट क्लिक ऑन रन ना, देन इट विल ऑटोमेटिकली पुल फ्रॉम द ऑनलाइन प्रोवाइडर्स
जो भी इसका पाथ है वहां से बस आप रन करोगे तो पहले ये डाउनलोड होगा, देन एक वर्चुअल कंटेनर बनेगा, and then it runs also and it gives you the message hello world. So same way you will get thousands of different images over there. तो ये देखिए अब आपका रन होगा, है ना, you can find It shows the hello outputs. from. हाँ नहीं हेलो आ गया ना, हेलो from dockers आ गया ना, Yes. right? Yes, sir. So this is the way how you can test that Okay. your hello word is running and now your docker is perfectly executing in your system. So ये containers के अंदर list आ गई, देखा ना, execute भी हो गया. Okay. I initially I executed using command prompt like this docker Perfect. run hello world, and then it also There you will it get the was same giving message. same message hello from docker. Great, very good, very good, very good. तो अब आपको समझ में आ गया ना, आप कमांड लाइन से रन करते हो तो ये देखो अब सेम वे में लिनक्स यूजर्स भी सेम प्रोसेस में, हम लोग भी ऐसे ही रन करते हैं. तो आपको कमांड लाइन से रन करना है या ग्राफिकली रन करना है, यू हैव बोथ द ऑप्शंस. Okay, okay. राइट, Yes. Thank you. कंसेप्ट क्लियर sir. हुआ? Yes. लेकिन जी, अभी sir. इसमें ये आपकी टेस्टिंग तो अच्छे से हो गई. नाउ टेस्टिंग इज फाइन, परफेक्टली फाइन, बट नाउ यू नीड टू लर्न हाउ यू कैन डिफाइन द स्पेस. इसमें स्टोरेज और नेटवर्क अभी ऐड करना हमें सीखना होगा कि कैसे हम नेटवर्क के पोर्ट्स और स्टोरेज, क्योंकि हम वर्चुअल मशीन्स में या कंटेनर में अगर कोई डेटा क्रिएट करेंगे, सो वेयर वी विल गोइंग टू सेव आवर डेटा. ये वाला पार्ट ना, आप कभी भी कोई भी इमेज सेलेक्ट करोगे, नाउ गो बैक टू इमेज, लेट्स से यू विल गो बैक टू इमेज, इमेजेस में जाइए, क्लिक कीजिए जरा टॉप में इमेजेस. हाँ, Yes, यहाँ पे sir. लिखो जैसे जुपिटर, से लेट्स से वी वांट टू डाउनलोड जुपिटर, ठीक है. हाँ, तो ये देखिए, यू फाइंड मेनी जुपिटर इमेजेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. है ना. इसके Yes, अंदर sir. आई थिंक रुको मैं आपको बताता हूँ कौन सा, विच वन इज बेटर, जो मैं खुद यूज करता हूँ. आई पर्सनली यूज डेटा साइंस. जुपिटर में डेटा साइंस हाइफन नोटबुक नाम की कोई चीज है क्या? चेक करो, डेटा साइंस हाइफन नोटबुक, ये नीचे है देखो, राइट. This one. Yes, sir. दिस वन, आई यूज दिस वन. इसकी भी लेटेस्ट इमेज आ गई हुई है ना. एक बार क्लिक करो, जस्ट क्लिक. नहीं, नो, डोंट पुल और रन, नो पुल एंड नो रन. Okay, just click it. Okay. Just click it. Yes. sir. Now you read the document on the right side. पहले पढ़ो आप क्या करने लगे हो. तो ये बेसिकली कमांड क्या है, डॉकर पुल, और ये पूरा पाथ लिखोगे तो आपकी मशीन में एक जुपिटर नाम का एक डॉकर्स के अंदर एक फोल्डर बनाएगा और उस वहां पर ये आपकी पूरी इमेज डाउनलोड करेगा. राइट, द मोमेंट यू जस्ट क्लिक ऑन पुल एंड फर्दर यू कैन रन ऑल्सो. बट हाउ टू रन, एक बार नीचे स्क्रॉल करो स्क्रीन को, कहां से आया है, इसका किसने बनाया, उसका गिटहब का भी लिंक दिया हुआ है ना. एवरीथिंग यू विल फाइंड. और भी है कुछ नीचे, Yes, स्क्रॉल sir. डाउन. और इज इट? No, sir. That's it. नो प्रॉब्लम. हाँ. तो इसके Yes. अंदर जब आप ये देखोगे, एक बार गिटहब का खोल के देख लो, नहीं तो वहां पे ना आपको रन कैसे करते हैं उसका प्रोसेस मिलेगा. राइट क्लिक करना इस पे, राइट क्लिक, रन एज एडमिन, हाँ, राइट क्लिक, न्यू टैब. एक बार, हाँ, अब इसमें देखो जरा नीचे जाओ, जस्ट गो डाउन, स्क्रॉल डाउन 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 डाउन. हाँ, यहाँ पे देखो आपको कुछ स्टेप्स मिल रहे हैं क्या? ये देखो नीचे एग्जाम्पल, ये देखो उसमें एग्जाम्पल 1 लिखा है. Yes, Have you sir. seen? तो जुपिटर Yes. का नोटबुक जो आप डाउनलोड करोगे उसको रन कैसे करना है, ये देखो ऐसे रन करना है. नीचे उसमें दिखाया कि पोर्ट्स कैसे मैप होते हैं, ठीक है, कैसे पोर्ट्स मैपिंग होगी और कौन सी वाली इमेज को आप किस तरीके से रन करोगे, उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए. अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि फाइनली जुपिटर के अंदर जो हम इमेजेस बनाएंगे, हमारे IPYNB फाइल्स बनेंगी ना पाइथन की, तो इसके अंदर आपने एक बार जुपिटर डाला तो ये पाइथन भी डल गया, डेटा साइंस की लाइब्रेरीज भी डल जाएंगी, सब कुछ इसमें डल जाएगा इन वन गो. आपको सिर्फ क्या करना है, पुल करना है. तो आपका तो कमांड पुल कमांड है ना. तो जब आप पुल करोगे तो आपका पूरा का पूरा जुपिटर डाउनलोड हो गया, along with Python latest version, their libraries, their environment, IDE, सब कुछ मिल गया इसमें. तो रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए आपको इन्होंने नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए. So all what you need to do, you can try with these examples. Okay, sir. ये एक Yes, नया sir. वेब सर्वर भी बनाएगा, इंटरनली वेब सर्वर बनता है. How to visit?
जो पहला वाला पोर्ट नंबर है, देखिए 10,000 जैसे मैंने लिखा, आप 10,000 की जगह अपनी मर्जी से लिख सकते हो, 80, 80, 81 लिख दो। तो जो पहला वाला पोर्ट नंबर होगा, ये आपके लैन में, पूरे लैन में से आप अपना जुपिटर रन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस पार्ट। तो पहले नीचे देखो विजिटिंग कैसे करना है, http:// आपकी मशीन का आईपी एड्रेस, देन कोलन ये वाला पोर्ट नंबर जो आपने मेंशन किया, यू कैन इवन चेंज द पोर्ट नंबर। लेकिन इंटरनली क्या होगा, आप बाहर लिखोगे 10,000 नंबर पोर्ट नंबर, लेकिन इंटरनली ये 88 पोर्ट नंबर खोलता है जुपिटर के लिए। ठीक है, तो जुपिटर जो है अंदर एक सर्वर खोलता है, पूरा एक नया सर्वर ओपन होगा, पोर्ट्स खुलेंगे। तो इंटरनल पोर्ट और एक्सटर्नल पोर्ट को अगर सिंक्रनाइज करना है तो ये लिखने का तरीका है। दिस इज वन ऑफ द वे। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है जी, क्लियर हुआ? एंड जी अपने आप को लिंक बना के देगा, टोकन कौन सा बनेगा ये आपको अपने आप जब रन करोगे ना, देन यू विल सी टू इट हाउ टू रन एंड ऑल। यस सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, जस्ट ट्राई एंड स्टार्ट। उसमें रनिंग में आउटपुट में आ जाएगा कि आपको विजिट कैसे करना है जुपिटर। दे विल प्रोवाइड यू द लिंक, यू जस्ट नीड टू कॉपी दैट लिंक एंड रन। अंडरस्टूड? तो रनिंग Yes, कैसे yes. होता है, प्रोसेस कैसे होता है, ये आपको देखना होता है। दैट्स इट, दिस इज द ओनली पार्ट। एंड सेकंड, आपको एक स्टोरेज मैपिंग करनी होगी बेस मशीन के साथ, कि कंटेनर में ना मेरा डेटा सेव ना हो। डेटा जो कंटेनर में सेव होता है, याद रखना सभी, वो जैसे ही आप कंटेनर से एग्जिट करोगे, क्विट करोगे, वो सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। कंटेनर स्टॉप होते ही सब कुछ रिमूव हो जाएगा, ये रैम में रहता है। और आपको होगा अरे सर मैंने कोड बनाया था, आज मेरा कोड उड़ गया। तो वो कोड इसलिए उड़ गया क्योंकि आपने कोड को सेव नहीं किया। आप कहोगे मैंने तो सेव भी किया था, रनिंग था। अरे वो कंटेनर के अंदर था, और कंटेनर के अंदर कुछ भी होगा तो वो रैम की तरह है, वो नॉन वॉलेटाइल है, वो रिमूव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए एक अलग से बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फोल्डर को डेडिकेट कर देना। माय डॉक्यूमेंट्स में जाके या कहीं पे भी एक लोकेशन में आप अपनी डेटा फाइल्स के नाम से एक फोल्डर बना लो। एंड फर्दर वी नीड टू मैप आवर बेस फोल्डर विद देयर वर्चुअल पाथ, एंड देन दैट्स इट। आप वर्चुअल में सेव करते जाओ, डेटा परमानेंटली बाहर सेव होता जाएगा। आप कंटेनर बंद कर दोगे, सिस्टम शट डाउन कर दोगे, तो भी आपको कोड मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म को देखे बिना आप कोड देख सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस हाउ वी पीपल यूज टू वर्क। ठीक है जी? तो जी, यस सर। ये मेजर काम हमें करना होता है। इसके बाद आप एक बार ये चीज शुरू कर दी ना, गारंटी हो आप किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इजीली, मतलब कंफर्टेबली काम कर पाओगे। मेजर कॉर्पोरेट्स आज की डेट में कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन पे काम करवा रहे हैं। कंटेनराइजेशन और फायदेमंद है, क्यों? क्योंकि लैन में ना कंपनीज क्या करती हैं, अपने लैन में एक कंटेनर डिप्लॉय कर देती हैं जुपिटर का, और सेम कोड को वाया आईपी एड्रेस सबसे शेयर कर देती हैं। तो मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम जुपिटर इमेज और सेम प्रोजेक्ट इन द पाइथन बाय यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो ये मल्टी यूजर्स के लिए भी हो जाता है। अभी तक तो आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो, लेकिन आपकी कंपनी में अगर मल्टीपल डेवलपर्स हैं, दे ऑल वांट टू वर्क ऑन अ कॉमन प्रोजेक्ट, सो इन दैट केस this is one of the best practice how you have to deploy your dockers and how you create the similar platform। यानी आप समझो ना, आपने तो वो था ना हमारा colab.google.com वाला कॉन्सेप्ट, आपको आप लोगों ने अभी शायद कोलैब पे आप लोग काम कर रहे थे ना पहले। जी सर, गूगल तो सोचो कोलैब ने, गूगल ने क्या किया, गूगल ने भी तो यही इमेजेस बना के डाल दिए हैं। गूगल ने कुछ नहीं किया है, लिंक बनाया कोलैब का, और वो कोलैब में आपको जुपिटर बना के रन करके दे दिया, और हम सारी दुनिया जो उसी पे जा जाके काम कर रहे हैं, और उसका स्टोरेज को उन्होंने क्या किया, आप ही की गूगल ड्राइव से मैप करके दे दिया। दिस इज व्हाट कोलैब पीपल डिड। क्या सेम गूगल का कोलैब एनवायरनमेंट हम अपने घर में अपने कंप्यूटर्स पे डिप्लॉय कर सकते हैं, अपनी मशीन्स पे प्रोसेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस। व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज, अभी आपने देखा ये जो है डेटा साइंस वाली इमेज, आप इसके थ्रू प्रोसेस कीजिए, आप अपने घर पे सेम सिमिलर प्लेटफॉर्म, सेम आर्किटेक्चर क्रिएट कर लेंगे। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो सब शुरू कीजिए, एक बार डॉकर डाल लीजिए, और डॉकर के बाद ये जो मैंने अभी आपको लिंक बताया,
इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें एंड प्लीज स्टार्ट वर्किंग। ये देख सकते हो आप, मैं स्क्रीन अब मैं शेयर करता हूँ, और आपने तो विंडोज पे कर रहे हो, मैं लिनक्स में कर रहा हूँ, लेकिन हमारी सबकी इमेजेस एक ही हैं। मैं भी वही डॉकर इमेज यूज कर रहा हूँ, और मैं भी वही डॉकर इमेज शेयर करने लगा हूँ जो मैंने ऑलरेडी पुल की हुई है। तो ये देख रहे हो मैंने कमांड लिखी sudo, मैं लिनक्स में हूँ, बस ये फर्क है। क्या फर्क पड़ता है उससे? आपकी कमांड सेम है, डॉकर स्पेस इमेजेस। दीपिका आप भी लिखना डॉकर स्पेस इमेजेस सी प्रॉम्प्ट पे, तो आपको दिखाएगा वो हेलो वर्ल्ड वाली इमेज। जी तो सर। मैंने जितने सारे इमेजेस डाउनलोड कर रखे हैं ये बनी बनाई इमेजेस हैं, नीड नॉट टू वरी। ये जो सेम मैंने आपको रिकमेंड करी, मैं खुद यही यूज करता हूँ। अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? और ये इंटरनली पूरा साइज इतना लेगी, लगभग 6 GB, क्योंकि लेकिन इसमें मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो आई विल शेयर द प्रोजेक्ट्स टू ऑल ऑफ यू एज वेल। लॉजिक क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है तो एक बार जुपिटर का ये डाउनलोड कर लो, जो भी 3, 4, 5 MB GB 5 GB 6 GB जो भी आपका ले रहा है। फर्स्ट यू जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस डॉकर इमेज, पुल करके देख लो, एंड देन वी विल स्टार्ट, वी विल वर्क ऑन इट, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है? इज दैट क्लियर? ये देख रहे हो मैंने भी हेलो वर्ड डाला ना, ये देख रहे हो आप हेलो वर्ड। तो जब आप हेलो वर्ड को रन करोगे तो ये इमेज कंटेनर की लिस्ट में आ जाएगा और रन हो जाएगा। सो टेस्टिंग करने का तरीका है हेलो वर्ड। Yes, sir. Mine is done, sir. आ गया ना? सबका हो गया? वेरी गुड, गुड। तो प्लीज एवरीबडी क्विकली स्टार्ट पैरेलली एंड इंस्टॉल डेटा साइंस नोटबुक। अपना खुद का जुपिटर एनवायरनमेंट क्रिएट करो ना, उसके बाद सारे कोडिंग जो आप कहीं पे भी कर रहे थे, चाहे वो W3 स्कूल्स का कोड हो, फिर या चाहे आपका किसी ने गूगल कोलैब में शेयर किया हो, आप वो सारे कोड डाउनलोड करके अपने जुपिटर पे रन कर सकते हो। तो सारा इन्वायरमेंट, रनिंग इन्वायरमेंट भी आपने क्रिएट कर लिया, और कोड तो आपके पास आ ही गए। सर जुपिटर पे कैसे करेंगे? उसी में ही डालेंगे ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। जुपिटर आप खोलो, सही प्लेटफॉर्म खोलो। जब जुपिटर का प्लेटफॉर्म खोलेगा वो मांगेगा ना पाथ, और वो पाथ में अपना पाइथन की फाइल डाल देना। रन करो ना, शुरू करो, मैं अभी दिखाता हूँ। रन करो, जस्ट स्टार्ट। ये देखो मैं अपनी मशीन पे शेयर करने लगा हूं, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये एक मेरे पास डॉकर की एक चीट शीट भी पड़ी है, और कुछ कमांड्स पड़ी हैं, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ क्विकली, ताकि आपको ज़्यादा गूगल सर्फिंग वगैरह ना करनी पड़े। सो देयर यू कैन सी द हाउ टू इंस्टॉल ऑन लिनक्स, डेस्कटॉप एडिशन ऑन लिनक्स, ये उसके लिए है। ये देखिए मैंने ये कमांड लगाई और पुल किया, लेटेस्ट इमेज कोलन के बाद लेटेस्ट डाल दोगे तो लेटेस्ट इमेज ही डालेगी, अदरवाइज आपको लिंक लेटेस्ट का ही आ रहा है, राइट? हाउ टू चेक द इमेज लिस्ट, इमेज लिस्ट देखने के लिए कमांड के, आप बस सूडो नहीं लगाना। आप ये लिनक्स में सूडो लगाते हैं, आपको सूडो नहीं लगाना है। आप लोग सिंपल लिखिए डॉकर स्पेस इमेजेस, विंडोज वाले यूजर्स, ठीक है? लिनक्स वाले यूजर सूडो लगाएंगे, अदरवाइज और कोई नहीं लगाएगा। बाकी कमांड सेम है। सर ये मतलब सर्च करना है कि टर्मिनल में डालना है? टर्मिनल में, कमांड प्रॉम्प्ट पे। टर्मिनल अभी खोला था ना इसने, दीपिका ने भी तो दिखाया तो था, अभी चेक किया था नहीं? दीपिका ने अभी तो चेक करवाया, दिखाया था ना, शेयर किया था। दीपिका आप ही शेयर करो स्क्रीन एक बार दोबारा, फिर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यस सर, आप विंडोज पे हो ना, आप दिखा सकते हो। एंड देन आई विल शो यू ऑल द कमांड्स। मेरे पास क्या क्या कमांड्स हैं, कैसे रन करनी है, मैं वो दिखाता हूँ बाद में। पहले आप एक बार दिखाओ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। रन करो जरा कमांड। yes sir, I run docker images and हाँ, good. hello share world your is screen. visible. हाँ, kindly share हाँ. your screen and quickly everybody can see. अभी देखो कमांड प्रॉम्प्ट रन करना, रन करके इनको दिखाओ सबको। ये हेलो sir, वर्ड is it वाला ही रन visible? करना है बस। हाँ, ऑन द प्रॉम्प्ट। Yes, yes. Yeah. हाँ, ये देखो सब देख रहे हो ना एवरीबडी। शी रोट अ कमांड डॉकर स्पेस इमेजेस, तो उसके पास अभी इनके सिस्टम में कौन सी इमेज है? हेलो वर्ड वाली इमेज है ना?
है ना? Yes, sir. Yes, sir. So there you will find Docker space images and it shows you that see there is a hello world. Now please run the hello world. तो रन करने के लिए क्या कमांड है? Docker Docker space run run hello world. space the name of the image Yes. और इमेज आईडी. आप इमेज आईडी भी डाल सकते हो और इमेज का नाम डाल सकते हो. इमेज का नाम इजी है, जो भी नाम है बस एग्जैक्टली वो डाल दो. देखो आउटपुट आ गया ना, हेलो फ्रॉम डॉकर्स, और जो भी मैसेज आना था उसमें जो डिप्लॉयड था वो आ गया, रिजल्ट आ गया. सो इट सिंपली एग्जीक्यूटेड. तो ऐसे ही आप C++, आगे हमारे को R लैंग्वेज पढ़नी है तो R लैंग्वेज का भी डॉकर इमेज मिल जाएगा. आज के बाद ना आपको कोई भी नया नाम मिलेगा ना, उसकी बनी बनाई इमेजेस मिल जाएंगी. सो यू जस्ट नीड टू डाउनलोड दोज इमेजेस एंड सिंपली रन. कितना आसान होगा. नहीं तो वो इन्वायरमेंट ढूंढो, पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसकी लाइब्रेरीज ढूंढो, उसकी कंपैटिबिलिटी में जाओ. सो देयर इज अ ह्यूज चैलेंज. यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट दोस चैलेंजेस. सिंपल अपना ग्राफिकली डॉकर को ओपन करो, इमेज को पुल करो और आप कमांड लाइन से रन कर सकते हो या ग्राफिकली भी रन कर सकते हो. क्लियर हो गया सभी को? ग्राफिकली भी एक बार दीपिका प्लीज रन कर दो. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. Yes. सर welcome. जुपिटर का आप जो बता रहे थे उसके लिए कौन सा कमांड करना है? जुपिटर के लिए हाँ वो भी दिखा देता हूँ. सर्च करना है आपको, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू डू, आप ऊपर जाके सर्च वाला ऑप्शन है ना ग्राफिकली, वहां पे लिख दो. आपको ढूंढना क्या है, वहां पे आपको ढूंढना है जुपिटर. और जब जुपिटर लिखोगे उसी में आपको मिल जाएगा Jupyter/data-science-notebook. तो मैं वो यूज करता हूँ क्योंकि उसमें लाइब्रेरीज अच्छे से डली हुई है. तो आप कोई भी अदरवाइज यू कैन ट्राई एनी अदर, बट आई रिकमेंड यू कैन ट्राई विद दिस वन. आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ. थैंक यू बेटा, थैंक यू दीपिका. यस सर, इट्स बीइंग Yes, डन. welcome, sir. है ना? परफेक्ट, बहुत बढ़िया. तो सभी के लिए आसान हो जाएगा. बस अब सब आप साथ साथ पैरेलल ट्राई करो. इफ यू ट्राई ना तो इट इज क्वाइट इजी, वेरी वेरी इजी जॉब. राइट नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन. यस सर. है ना? तो देखो मैंने क्या किया, अब देखना ध्यान से. यहाँ पे ना आप इसका स्क्रीनशॉट का वो भी ले सकते हो अगर आपको प्रिंट स्क्रीन लेना है तो. सो यू कैन टेक द प्रिंट स्क्रीन. हाउ टू चेक द डॉकर इमेज, उसके लिए कमांड क्या है? प्लीज इग्नोर sudo. ये लिनक्स यूजर्स के लिए है. विंडोज में जैसे अभी दीपिका ने दिखाया, उसने क्या लिखा था सर? डॉकर इमेजेस. तो उसकी लिस्ट आ गई थी, है ना? नेक्स्ट कमांड, जब कंटेनर्स अगर रनिंग में हैं तो इमेजेस और कंटेनर तो ये दो अलग चीजें हैं. इमेजेस क्या होती हैं? जिसके अंदर आपका बना बनाया प्री डिप्लॉयड सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन वो रनिंग में नहीं है. इट इज नॉट इन द रनिंग मोड. तो जो कितने टोटल इमेजेस हैं, कितने वर्चुअल इमेजेस हैं, कंटेनराइज्ड इमेजेस हैं, वो लिस्ट देखने के लिए कमांड है डॉकर इमेजेस. बट जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तब एक प्रोसेस बनेगा ना, कंटेनर का प्रोसेस रेडी होगा और वो इमेज एक वर्चुअल कंटेनर में डिप्लॉय होगी और वहां से एग्जीक्यूट होगी. तो वो देखने के लिए कमांड कौन सी है जी? एवरीबडी कैन गो एंड चेक लाइक दिस. डॉकर स्पेस PS. कौन सी कमांड है? डॉकर स्पेस PS, या आप ये भी लिख सकते हो डॉकर कंटेनर LS. कंटेनर्स की लिस्ट देखनी है तो डॉकर कंटेनर LS या डॉकर स्पेस PS. आप इनमें से दोनों में से कोई भी कमांड प्रोसेस कर सकते हो. सो इसका लिख लो आप लोग, प्लीज टाइप कर लो, कॉपी पेन लेके लिख लो. अदरवाइज इफ यू कैन राइट डाउन दैट इज फार बेटर. एटलीस्ट आपको डॉकर पे काम करना आ जाएगा. डन, लिख लिया? मैं रन करके भी दिखा रहा हूं आउटपुट में, ठीक है? अननोन कमांड आ रहा है. हाँ मैं लिख रहा हूँ sudo docker space PS. ठीक है? तो PS लिख के एंटर किया. आपसे आपका अगर लिनक्स है तो पासवर्ड मांगेगा. अभी फिलहाल कोई प्रोसेस नहीं है, खाली आ रहा है ना, क्योंकि मैंने कुछ रन ही नहीं करा. अभी तक मेरा प्रोसेस खाली है. क्यों? क्योंकि मैंने कुछ रन ही नहीं करा है. तो जब रन करूंगा तब प्रोसेस लिस्ट में कंटेनर में कुछ इमेज लग जाएगी. लेकिन जब मैंने इमेज देखी थी तो इमेज में तो सारा था, बड़ी सारी इमेजेस मेरे पास पड़ी हैं, तो वो सब ऑफलाइन पड़ी हैं, है ना? इट्स अ डमी ड्राइव्स, डमी इमेजेस.
जब मैं रन करूंगा तभी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, बाकी रैम और प्रोसेसर्स और हार्डवेयर सोर्सेस तभी शेयर करेगा, इससे पहले नहीं करेगा। लॉजिक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। सर इसमें अननोन कमांड आ रहा है। डॉकर डला है? यस सर, एक बार डॉकर। मशीन को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट नहीं करा डॉकर के बाद आपने शायद? ये सर वो डॉकर आया, हेलो फ्रॉम डॉकर आया रन करने पे, हेलो वर्ल्ड, बट उसके बाद जब मैंने कमांड डाला। चलना चाहिए ना। अगर पीएस नहीं चल रहा है, ये देखो कंटेनर वाला कमांड चलाओ। डॉकर पीएस वाला पीएस वाला चलाओ, कंटेनर। यहाँ कंटेनर्स स्पेस एलएस करके देख लो। WSL इंस्टॉल कर लिया था ना, उसमें ऑप्शन आया था यस सर, वो WSL वाला। ये सर वो ऑलरेडी हो गया, रिस्टार्ट भी कर दिया था उस टाइम पर। हाँ, तो इसलिए WSL होने के बाद आ जाता है LS कमांड, और ये तब चलता है। WSL इसीलिए चाहिए होता है, विंडोज पे लिनक्स का सपोर्ट है वो, क्योंकि सर LS कहना कमांड चाहिए। लिनक्स की होती है, PS कमांड लिनक्स की होती है, और विंडोज में हमें जब ये कमांड चलानी होती है तब हम ये ट्राई करते हैं। सर कहना शेयर माय स्क्रीन। ओके, सर ये ऐसा आ रहा है। ओके, गिव मी अ मिनट। डॉकर में हेल्प लो जरा, डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प लगाओ। आ तो गया, ठीक तो है, चल तो गया आपका कंटेनर कमांड। डॉकर ये स्पेस सर कंटेनर स्पेस LS का मतलब है अभी खाली है ना, अभी कुछ रनिंग में नहीं है। नहीं सर, अभी मतलब 2 मैंने रन किया ये वाला, मतलब नहीं नहीं, ये वो आपने रन हो गया, जुपिटर। खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया ना। जब रन हो गया तो चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद अभी जी। आपके रनिंग जब होता है ना इमेज, तब देखना होता है हमें। अभी आपका कुछ रनिंग कहाँ है, ये देखो स्टॉप्ड है ये। आगे आप स्टार्ट में देखो, स्टार्टिंग में देखो ना, ये बटन रन मोड पे नहीं है। हाँ, रन कहाँ है अभी? रन सर यहाँ करोगे, पे हाँ। इमेज लोड होगी, वो जब रनिंग मोड में आएगा तो कंटेनर बनेगा, है ना। हेलो वर्ड आपने ठीक है सर। चलाया, रन करा, बस खत्म, वो क्लोज हो गया। ओके सर। ठीक है, सर ये इस तरह से, तो मतलब आपका वो ठीक दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा प्रॉम्प्ट पे जाओ एक बारी। हाँ, यहाँ पे एक बार बस ये लिखना डॉकर स्पेस, क्योंकि है ना वर्जन है, वर्जन कई बार कुछ कमांड्स नहीं चलती हैं, तो हाइफन हाइफन हेल्प ले लो, हाइफन हाइफन हेल्प। हाँ, एंटर करो। देखो इसमें जो जो आपकी कमांड चलेंगी उसकी पूरी लिस्ट होगी इसमें। ऊपर देख रहे हो, ये सारी लिनक्स की कमांड्स हैं। टॉप कमांड है ना, स्टार्ट, स्टेटस, सेव, RMI, पोर्ट नंबर, लॉग्स, किल, नीचे से पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, अटैच, कमेंट, CP कमांड, कॉपी करने के लिए कमांड, ये सारी लिनक्स की कमांड्स हैं, और ये सारी कमांड्स कंपैटिबल हैं आपके इस डॉकर के वर्जन के साथ। हिस्ट्री है ना, इंस्पेक्ट, ये सारा कुछ आपके लिनक्स कमांड्स हैं जो कि कंपैटिबल हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, डोंट वरी, इट इज वर्किंग। ओके सर, इज इट फाइन सो फार सर? हाँ, कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? यस यस। हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट है, गुड। तो अब फाइनल एक बार ये वाला डॉकर की वो डालो जो मैं अब बताने लगा हूं, जुपिटर, उसमें टाइम लगेगा ना, साथ साथ जुपिटर वाला डाउनलोड कर लेना। जुपिटर कौन सा वाला लेना है, डेटा साइंस हाइफन नोटबुक, क्योंकि हमें डेटा साइंस भी पढ़ना है, हमें मशीन लर्निंग है वो भी पढ़ना है, और आगे AI का भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पाइथन बेस्ड हैं वो पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट एक शायद आपका सिलेबस में R लैंग्वेज भी दी हुई है, तो अगर R लैंग्वेज में पढ़ना होगा तो भी R लैंग्वेज का भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म ले लेंगे ना। Why you will go and install, अगर बेस मशीन में सॉफ्टवेयर डाल लिया ना, तो सोचो ये हर रोज इतनी मेमोरी खाता, स्टार्टिंग में कंप्यूटर ऑन होते ही मेमोरी खाता। अभी क्या है, मेमोरी सिर्फ हार्ड डिस्क की ले रहा है जितना भी ऑक्यूपाइड है, और अगर आपको नहीं चाहिए इमीडिएटली एक कमांड से RMI करके इसकी इमेज को डिलीट कर देंगे, डॉकर स्पेस RMI स्पेस इमेज नेम, तो वो हमारी इमेज कभी भी डिलीट कर सकते हैं। उससे आपके ना बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके विंडोज की रजिस्ट्रीज,
DLLs, उन सबको किसी को भी इफेक्ट नहीं होगा। स्टार्टअप प्रोग्राम्स, प्रोसेस लिस्ट, वो मेमोरी जो रियल टाइम ऑक्यूपाई करता है ना सर्वर्स, वो नहीं करेगा। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। इसीलिए हम बेस मशीन में डॉकर के थ्रू हम एप्लीकेशंस को रन कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट इंस्टॉल करके कर रहे हैं। ठीक है जी। आप सिर्फ डेडिकेटेड मशीन बनाना चाहते हो, आप तो डेवलपर लोग हो अभी, है ना, टेस्टिंग करोगे, तो बेटर है कंटेनर्स। अगर आप डेडिकेटेड सर्वर डेडिकेट करना चाहते हो और आप ना और कोई काम नहीं करना है, तो फिर तो डेडिकेटेड सर्वर रेडी कर दो, सेम बेस मशीन में डाल दो और परमानेंट उसको चला के छोड़ दो। ये आपका काम नहीं है। आपके तो आपका घर का लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल पे शायद कुछ लोग काम कर रहे होंगे सपोर्ट में, या चेक कर रहे होंगे, ऑनलाइन चेक कर रहे होंगे। So in that case, best practice is always try and work either in virtualization or in containerization. So containers को कैसे काम करते हैं, इसलिए आज ही मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। समझ में आ गया सभी को? आपका ये वाला कमांड चल गया था, ये विंडोज में चल गया है ना, docker space container space ls। तो आप ये वाला ट्राई करते हैं, परफेक्ट है। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करते हैं? कमांड लिखो docker space स्टार्ट के बाद क्या, आपका अगर कोई कंटेनर आईडी है या कंटेनर कोई बना हुआ तो हम उसको स्टार्ट करके देख सकते हैं, और नहीं तो सिंपल डायरेक्ट आप एक ही बार में सीधा लिखोगे ना डॉकर स्पेस रन। देखो मैंने कैसे रन किया था, ये मेरा रन करने का तरीका था। ठीक है, उसमें इंटरनली जुपिटर क्या करता है, पोर्ट नंबर 8888 खोलता है। मैंने भी अपने मशीन में 8888 पोर्ट ही रखा ताकि कोई गड़बड़ नजर ना आए, कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो या तो आप ये कमांड यूज करो, लेकिन ये है बड़ा बेसिक लेवल पे कमांड। अब मैं आपको दिखाता हूं। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ जी, सॉरी, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा एक मिनट रुकिए, या जस्ट गिव मी अ मिनट। या इज इट विजिबल नाउ? यस इट इज। परफेक्ट। तो मैं ये बोल रहा था, आपका ये वाला कमांड चल गया। ठीक है, डॉकर कंटेनर स्पेस ls कमांड आपका चल रहा है। ठीक है, इफ इट्स ब्लैंक आप और भी डिटेल में -a करके देख सकते हो, कोई बात नहीं, ब्लैंक आता है, वो रन होने के बाद ब्लैंक कई बार दिखाता है। आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ps कमांड हमने जैसे चलाई थी, ps डॉकर स्पेस ps स्पेस -a ट्राई करना। क्या ये कमांड चलती है? ps-a। हाँ, स्पेस -a। हाँ यस सर, ये रन हुआ। और इसमें कुछ लिस्ट आई? यस सर, कंटेनर का 3 मैंने रन किया था, तीनों का वो आया आ है। गई ना? हाँ, तो इसकी पूरी हिस्ट्री और जो मेमोरी में रहता है उसकी भी लिस्ट आ जाएगी -a के साथ। ये देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी कमांड्स इसलिए लिखी हुई है। यस सर। क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लिखो फटाफट। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है डॉकर को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो उसमें जो भी कंटेनर आ रहा है, तो कंटेनर का एक कंटेनर नाम नेम आ रहा होगा या कंटेनर आईडी आ रहा होगा, या तो कंटेनर का नाम दिख रहा होगा या कंटेनर आईडी दिख रहा होगा। तो कमांड क्या यस सर, होती है, आईडी। लिख लो एक बार ना, आप सारे कमांड्स नोट कर लो एंड देन यू शुड प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो कमांड क्या है, डॉकर स्पेस स्टार्ट स्पेस कंटेनर आईडी, जो भी कंटेनर आईडी है, नेम ऑफ द कंटेनर, दैट्स इट। इस तरीके से आप अपने डॉकर के कंटेनर को, पुराने बने हुए कंटेनर को जिसको आपने किल नहीं किया है, पुराना सेम कंटेनर को रन करना है। तो हमारा एग्जिस्टिंग कंटेनर को दोबारा से रन करना है, क्योंकि हम उसको चलता छोड़ के बाकी काम करने लग जाते हैं ना, एंड अगेन वी हैव टू गेट इनटू इट, दोबारा से वापस जाना है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो सेम कंटेनर को, अगर वो कंटेनर्स की लिस्ट में है तभी। अगर कंटेनर्स की लिस्ट में नहीं है तो इमेज को हम स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे, तो वो एक नया कंटेनर क्रिएट करेगा और कंटेनर के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो कभी भी रनिंग एनवायरनमेंट जो आता है वो कंटेनर के अंदर आता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कंटेनराइजेशन, राइट? तो आप समझो ना, वो दिखाते हैं ना शिपयार्ड वाले कंटेनर, शिपयार्ड्स में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं लोग, तो कंटेनर खाली होते हैं, उसके अंदर आपको क्या डेटा लोड करना है ये आपका डिसीजन है, और कंटेनर का एक आईडी नंबर रहता है आपके पास। तो मतलब आपका कंप्यूटर एक शिपयार्ड की तरह काम कर रहा है, जिसके अंदर डेटा तो आप
शिप में डायरेक्ट भी बैठ सकते हो, डायरेक्ट भी ले जा सकते हो, लेकिन आप उनको कैटेगराइज कर रहे हो मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक टाइम में इकट्ठे रन करने के लिए, तो क्या कर रहे हो आप, मल्टीपल कंटेनर्स कैरी कर रहे हो और हर कंटेनर में अलग काम चल रहा है ना। सो इट सीम्स टू बी लाइक सिमिलर, लाइक ये देखो ना, डॉकर की अगर आप लोग इमेज चेक करोगे तो आपको बड़ा सिमिलर लगेगा। डॉकर्स होते ही वो यूज करते हैं ना शिपयार्ड वाले। डॉकर अगर मैंने लिखा तो डॉकर की अगर आप सिंपल इमेजेस चेक करोगे ना तो आपको बड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा हम किस तरह के, ये देख रहे हो ये बनता ही है, इनका ऑफिशियल लोगो भी यही है, देख रहे हो एक शिप है और उसमें बड़े सारे छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, तो इमेज भी यही है, इनका लोगो भी यही है डॉकर्स का। तो हमारे पास बड़े छोटे छोटे इमेजेस हैं और वो इमेजेस जो हैं इस तरह के कंटेनर्स में लोडेड है, और आपकी मशीन जो है वो एक शिपयार्ड है। सो दे यू नो मेक द लुक एंड फील सिमिलर टू दैट। आर्किटेक्चर क्या है यहां आपको मिल जाएगा इन सब में। सो इमेजेस देखा करो, आपको पता चल जाता है व्हाट इज डॉकर, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये सब कंटेनर्स हैं, बड़े बड़े जो कंटेनर्स आप कैरी करते हो, हर कंटेनर में समझ के चलो कुछ डेटा चल रहा है, कुछ प्रोसेस हो रहा है और वो अलग हो रहा है। तो शिप एक ही है लेकिन अंदर बड़े सारे सर्वर्स चल रहे हैं, अंदर बड़े सारे आपकी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए प्रोसेस की जा रही है। सो डॉकर इज वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड। आप वर्ल्ड के किसी कोने में भी किसी के लिए भी काम करोगे तो आप उनको डॉकर की इमेज में प्रोसेस करके दिखा सकते हो। इट सीम्स टू बी लाइक अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। हालांकि इसके और भी ऑल्टरनेट्स हैं, क्यूबरनेट्स है और आपको मिल जाएंगे बड़े सारे, बट यू शुड गो थ्रू विद डॉकर विच इज द बेस्ट प्रैक्टिस। और हर जगह कंपैटिबल है। इवन नए नए जब आपके आर्म प्रोसेसर्स आए थे ना एप्पल मैक के, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर ही कंपैटिबल नहीं था क्योंकि मार्केट में आर्म एप्लीकेशंस ही नहीं थी, सारे इंटेल बेस्ड एप्लीकेशंस थी। तो अब इंटेल बेस्ड एप्लीकेशन को आर्म प्रोसेसर पे कैसे चलाएं, तो हमने कंटेनराइजेशन से ही चलाई थी सारी एप्लीकेशंस। अंडरस्टूड? तो वो इन्वायरमेंट ही तो देना होता है, वो इन्वायरमेंट हमने कंटेनराइजेशन से दिया था। और लोग जो नए नए लैपटॉप लेके आए और उनका कुछ भी नहीं चल रहा, सब कुछ यहाँ तो ऑनलाइन चल रहा है या बेसिक इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर ही नहीं है, या जो हैं वो बड़े एक्सपेंसिव हैं और उसमें भी बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो आपने देखा होगा मैकबुक्स के रेट एकदम फॉल हुए, जो 1.5-2 लाख रुपए की मैकबुक थी आज 40-50 हजार 60 हजार 70 हजार में मिल रही है बड़े आराम से। तो मैकबुक सस्ते होने का रीजन क्या है, वो M1 M2 M3 M4 प्रोसेसर उसने अडॉप्ट कर लिया है, वो सारे हैं आर्म प्रोसेसर्स, उन्होंने इंटेल को छोड़ दिया है। मैकबुक ने इंटेल छोड़ दिया है। पहले इंटेल के प्रोसेसर आते थे ना i5 i3 i7 मैकबुक में, तो पहले सारी एप्लीकेशंस हमारी चल जाती थी जो हमारे रेगुलर कंप्यूटर्स पे चलती थी, सेम एप्लीकेशन मैकबुक पे भी सपोर्ट कर जाती थी। लेकिन आज की डेट में कोई भी एप्लीकेशन मैकबुक पे सपोर्ट ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि अब हमें चाहिए आर्म प्रोसेसर वाली एप्लीकेशंस। तो इंटेल का और आर्म का ना इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया, इसलिए आप कभी भी कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो यू मस्ट वेरीफाई वेदर इट इज, ये देखो ना आर्म प्रोसेसर अलग है, ये भी अभी बीटा वर्जन चल रहा है, आप देख रहे हो टेस्टिंग में है अभी भी। डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज ऑन आर्म प्रोसेसर। आप समझ में आया मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा था? तो आप लोग प्लीज, ये जो 8664 होता है ये सारे इंटेल प्रोसेसर्स हैं, और जहां आर्म प्रोसेसर है वहां वो है M1 M2 M3 M4 वाले प्रोसेसर्स, या आर्म प्रोसेसर अलग भी आते हैं उनके। तो बिकॉज ऑफ प्रोसेसर्स आपके सारी एप्लीकेशंस बदल जाएंगी और उस पर काम करने का तरीका भी। ठीक है, इसलिए एप्पल मैकबुक्स लोगों ने ली और लेके उन्होंने वापस करनी शुरू कर दी। नई नई मैकबुक खरीद के वापस कर दी 30 दिनों में, अरे बेकार है हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस। और वापस उन्होंने ये HP डेल और ये सब लेने लग गए क्योंकि एप्लीकेशंस है ही नहीं, आज भी अच्छी एप्लीकेशंस नहीं है आर्म प्रोसेसर के लिए। इसलिए मैकबुक के रेट गिरे मार्केट में। लेकिन अब जब एप्पल इस पे आ गया है आर्म प्रोसेसर पे, तो बाकी सबने भी आर्म प्रोसेसर धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू किया। मतलब टाइम लगेगा, अगले जब से ये शुरू हुआ M1 M2 M3 M4, तो लगभग 2-3 साल में आपने ज्यादा देखा होगा
और तब से लेके अभी भी आने वाले अगले मुझे लगता है 3 से 4 साल के अंदर still you will face some inconvenience about ARM processor. उसके बाद दोनों डाइल्यूट हो जाएंगे, बराबर आ जाएगा, या ये डॉकर्स आ गए ना, तो डॉकर्स और ये सब ने कंटेनराइजेशन में सब काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ वीएम बन गए हैं, वर्चुअल मशीन्स आ गई हैं जो कि आर्म को सपोर्ट करेंगे इंटेल के एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। मतलब वही वाला जो लिनक्स में बहुत सालों पहले, मतलब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 इयर्स बिफोर मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करता था वाइन का लिनक्स में, 30 इयर्स बिफोर। कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू बिलीव इट? हम लोग विंडोज के एप्लीकेशन 30 इयर्स बिफोर लिनक्स में चला लेते थे 286 386 कंप्यूटर्स पे। तो दैट वाज अ वे हाउ वी यूज्ड टू हैंडल इट, और वो आज तक डेवलपमेंट फेज में है और नए नए फेसेस आ रहे हैं, क्योंकि आपको हाई ग्राफिक्स चाहिए, हाई नेटवर्क चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, एप्लीकेशन बड़ी हैवी है ना, वो सब कुछ चलाने के लिए तो हमें वैसा एनवायरनमेंट चाहिए। वी नीड दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? यू शुड ट्राई एंड वर्क लाइक दिस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कमांड्स लिखिए। Now, if you run Jupyter on a very basic ground, then this is the command. Otherwise, please wait. How I use it, first I would like to share to all of you. Wait, है ना? Please wait and check. How do I run? अब मैं run कैसे कर रहा हूँ? ये देखिए, you can try for Python or for R language. Both languages are available for Jupyter. Is that clear? तो ये हम यहाँ यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट आपको मैंने बताया पोर्ट नंबर आपको मैपिंग करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब स्पेस, आपको हार्ड ड्राइव जहां पर आपको डेटा स्टोर करना है वो भी मैपिंग करना होता है। तो देखिए कमांड क्या यूज कर रहा हूं मैं, प्लीज नोट डाउन। ये यहां से देखिए, डॉकर रन -p, -p इज फॉर पोर्ट मैपिंग। किसके लिए होता है? पोर्ट, लोकल पोर्ट, लोकल आपकी बेस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्ट, कोलन टू द वर्चुअल पोर्ट इन द कंटेनर। सो -p डिफाइंड द लोकल पोर्ट सिंक्रोनाइज विद द वर्चुअल पोर्ट विद इन द कंटेनर। तो इसलिए हमने, क्योंकि आपका जुपिटर जब भी खुलेगा वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8888 ओपन करता है, तो हमारी मशीन में 8888 पोर्ट नंबर यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए व्हाट वी डिड, we run the Jupyter with -p 8888:8888। तो ये लिखना है ताकि आप बेस मशीन या नेटवर्क में भी बैठ के जुपिटर को रन कर सको। मल्टी यूजर्स एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए ये कमांड आपको ऐसे रन करनी है। नेक्स्ट, अब एक और मैं पैरामीटर यूज कर रहा हूं, -v। -v किसके लिए होता है? प्लीज नोट डाउन। -v इज फॉर वॉल्यूम मैपिंग। ठीक है, वॉल्यूम मैपिंग हो रहा है। असाइन द लोकल फोल्डर टू द वर्चुअल फोल्डर ऑफ द कंटेनर। तो वर्चुअल फोल्डर और कंटेनर का बेस फोल्डर, यानी -v के बाद जहां से मैं ये जुपिटर रन कर रहा हूं, ये देखो मैं जुपिटर रन कर रहा हूं इस लोकेशन से, तो यहां पे मैंने एक आपका कौन सा फोल्डर है मेरा, पाइथन कोड के नाम से मैंने कुछ बनाया है क्या? ये देखो मेरे पास पाइथन कोड के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, कैन यू सी दिस, जिसके अंदर मैंने कितना कुछ डाला हुआ है। आई हैव मल्टीपल नेस्टेड फोल्डर्स एंड मेनी पाइथन कोड्स। तो मैंने अभी तक डॉकर रन नहीं किया है, बट आई कैन एक्सेस माई कोड्स। आई हैव अ सेपरेट IPYNB files. Are you getting my point? I have many folders with many content running separately in the Python code folder. तो मेरे फोल्डर डेटा कहाँ सेव्ड है? मेरे सारे पाइथन फाइल्स बाहर है, लेकिन ये बाहर कैसे आई? बाहर लाने के लिए आपको जो कमांड रन करनी है वो ये है। तो ये है आपकी, जैसे आपने माई डॉक्यूमेंट्स में कोई एक फोल्डर बना दो, जैसे पाइथन कोड्स के नाम से, या कोड्स, या whatever you want, इग्नो प्रैक्टिस, आपको जो फोल्डर बनाना है एक लोकल फोल्डर बना दो। देन कोलन के बाद एक बार आप पहले रन करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। कोलन के बाद
आपको वो वाला फोल्डर मैप करना है, वो वाला फोल्डर मैप करना है जो आपके जुपिटर इमेज के अंदर है। ठीक है, ये डेटा साइंस के अंदर जो ये फोल्डर बनाता है वो ये वाले नाम से फोल्डर बनाता है। तो सारा डेटा आपको इसके अंदर दिखेगा या अलग से नाम में दिखेगा? आप कहोगे ये पता नहीं कहां जा रहा है सर, वो तो कंटेनर के अंदर है, कंटेनर बंद कर दिया तो डेटा उड़ जाएगा, आपके सारे कोड रिमूव हो जाएंगे। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज यू नीड टू मैपिंग करनी पड़ेगी आपको लोकल फोल्डर कोलन, ठीक है, कंटेनर के फोल्डर के साथ, ताकि आप जो डेटा डालोगे वो कंटेनर के फोल्डर में डालोगे, लेकिन ऑटोमेटिकली सिंक होके वो सारा का सारा डेटा बाहर फोल्डर में आपको नजर आ जाएगा। So you can access your base folders which get synchronized with your containers folder, right? Then next parameter,